Welcome students. I appreciate that you have taken business studies as your core subjects in the commerce stream. I'm your teacher friend. We'll be discussing the basics of business studies as well as I'm taking class 12th. So now class 12th syllabi I will discuss in the beginning, where you have to focus and where you have to strike. And now the business studies is divided into two parts. We have a 100 marks paper in class 12th. इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है. One is the managerial part. It's all about management. It's purely about the management. The word management is all around. You will say everywhere. We say he's a good manager. He manages things very well. At our home, office, shop, agriculture land, everywhere. The word management is common. Even at our kitchen, our mother is a good manager. So what does this manager mean? What are its principles of management? That we have to study. So now my topic will be the business management. But business management से पहले मैं थोड़ा management का एक background बताऊंगा, और उसके बाद जो हमारा syllabi है, syllabi में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी उस पर मैं बात करूंगा. तो पहला तो वर्ड मैनेजमेंट को आप समझ लीजिए, जैसे हैरी पार्कर फोलेट ने कहा, बस एक मोटी डेफिनेशन है. हैरी पार्कर, HAR, हैरी पार्कर फोलेट, because I like his definition of management. That is, he said that management is art of doing things from others. Art of getting things done from others. या art of doing things from others. See, अगर ना नटशल में कहेंगे, मैनेजमेंट वर्ड मीन्स आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स. दैट्स मैनेजमेंट. दैट्स प्योरली एन मैनेजमेंट. अब इस बिजनेस स्टडीज का जो हमारा पेपर है उसमें हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक है प्योर, हमें मैनेजमेंट के बारे में जानना है, इसके क्या फंक्शंस हैं. मैनेजर, हु इज द मैनेजर, मैनेजमेंट. उसके बाद हु इज द मैनेजर, इसकी फंक्शंस क्या है, या इसकी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हमारे 3 यूनिट हैं, बट दिस इज आई कैन से वन टॉपिक. अगर आप एक मैनेजर को, यू विल कीप अ पिक्चर ऑफ ए मैनेजर इन फ्रंट ऑफ यू, अगर उसको आप स्टडी करेंगे, you will understand that what are the characteristics of that person, what principles he is adopting, what kind of qualities he is having. So this is the one part of the syllabi. The second part will be, then we have to think about financial management. One is this is the part of a manager. And now we have to think in terms of finance, where from we will get the money and allied. Financial markets, because अमीर simple production और distribution से नहीं बनता है. We usually say that manager, it's about production. Business studies में जिसको हम कहते हैं कारोबारी उलूम, उर्दू में इसको कारोबारी उलूम कहते हैं. कारोबार में दो चीज़ें आते हैं. Two things come in the business. One is production and other is the distribution, और जिसको हम ट्रेड एंड कॉमर्स कहते हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स. तो दो चीजें बिजनेस में आते हैं. पहला प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स. इनको थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा डिटेल में. तो सिलेबस का हमने डिसाइड किया
कि दो हिस्सों में हमारा सिलेबस डिसाइडेड है. वन इज वी हैव टू स्टडी द मैनेजमेंट पार्ट एंड अदर we have to study the management, but not of an individual, but of a finance, but of a financial markets and marketing management. And last जो हमारा है consumer protection. ये क्योंकि हमारा जो सब कुछ बिजनेस में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? It comes from a consumer. तो obviously we have to protect it. Consumer is the king of a market. Usually लग रहा है ना कि businessman king, उसको समझना है कि कंज्यूमर इज द किंग, ही इज द सर्वेंट, बिजनेसमैन इज द सर्वेंट. अगर फंडामेंटली हम देखेंगे इसको तो कंज्यूमर इज द किंग. वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन. और इसमें मेरी आपसे जो आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसको क्योंकि हमारे यहाँ 2019 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है, तो इसलिए मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा आई विल डिस्कस 2019 एक्ट, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ सर्टेन चेंजेस. जो अर्लियर हमारा 1986 का जो लॉ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए हैं. तो ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है. तो आज हम इस पार्ट के एक टॉपिक को जो सारी चीज़ों को कवर करता है, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट का जो बेसिक क्रैक्स हैं उसको हम समझेंगे. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के साथ साथ अगर उस डायग्राम को मैंने अच्छे से समझा तो दैट मीन्स मैंने एक पार्ट सिलेबस का ऑलमोस्ट 60% पार्ट मैंने कवर किया. उसी डायग्राम को अब सिर्फ क्योंकि एक टॉपिक एक यूनिट यहाँ पे है जो एडवांस है, जब हम एमबीए कर रहे हैं एमबीए में वो एक टॉपिक था, यहाँ आपको एक यूनिट है. लेट्स पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करूंगा, उसके बाद वो डायग्राम डिस्कस करूंगा. सो व्हाट्स मैनेजमेंट? इट्स आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. ये लाइन बोलना नहीं. मैनेजर कौन होता है? जो लोगों से काम कर रहा है. दैट थिंग वी हैव टू रिमेंबर. सो नाउ फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन. दो चीजों का हम बिजनेस करते हैं. Two things are there. One is the production and another is the distribution. What does production mean? किसी चीज को बनाना, that's a production. Simply जिसको हम बाद में फिर इंडस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्री जहाँ पे चीज़ों को बनाते हैं. प्रोडक्शन क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. जैसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं, किसी चीज़ का बनाना, मैन्युफैक्चरिंग. मगर इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, इट्स नॉट ओनली द गुड्स, इट्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. हम डॉक्टर्स बनाते हैं, दे गिव अस सर्विस. तो इट्स नॉट ओनली द वी मेक लैपटॉप, वी मेक ब्लैक बोर्ड, वी मेक दिस marker board, we make cameras. No, it's again a service also. We make doctors, we make teachers, that's again a part of production. Doctors, engineers, teachers, economists, accountants, business entrepreneurs, they are part of this production. So goods के साथ साथ services भी. अब distribution में दो चीज़ें हैं. It's simply a trade. Trade means buying and selling. What does trade mean? Simple, buying and selling. चीजों को खरीदना और बेचना. I will tell you the secret how to make a big money. कि पैसा कैसे बनाएंगे. My teacher have told me the big secret. Guess what can be the big secret behind making a good money or making a good name in the trade? Like we have our Jamshedji Tata and Tata companies, है ना, बड़ा नाम है ना इंडिया में. रिलायंस है, टाटा है. कहाँ से, where from he have started, from Tata's and where he is present day, and reputed name is the business, especially Ratan Tata. और इसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी सिंपल है. तो सिंपल रूल ये है, buying and selling is the trade. Simple. This is the golden rule for all. Even though you are buying a
nuclear, you are buying a Rafale from the France. It's simply buying and selling. You might be selling lot of things to countries, lot of things to other part of world or consumers. तो secret क्या है? Buy at low price. जो secret किसी को नहीं बताना. Buy at a low price and sell at a high price. That's business. और हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन बिजनेस में ये है कि एज अ बिजनेस मैन, क्योंकि माशाल्लाह टुमारो यू विल बी सम माइट बी एन एंटरप्रेन्योर, सम माइट बी अ बिजनेस मैन, सम माइट बी अ स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, क्योंकि मे बी वी माइट बाई स्टॉक्स फ्रॉम यू ऑल्सो. तो अब इसमें ये नहीं है कि यूजुअली हमें एक कंसेप्ट रखा है नहीं 10% प्रॉफिट होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक. जहाँ पे दो लोग सेटिस्फाई हैं, बायर एंड अ सेलर, मतलब बायर एंड सेलर, बायर तैयार है कोई चीज़ खरीदने पे, सेलर इज आल्सो रेडी एट टू सेल. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लैंड प्राइसेस हाई हैं. हमारी श्रीनगर सिटी में लैंड प्राइसेस काफ़ी कहते हैं आसमान को छू गए. तो बायर इज रेडी टू बाय एंड सेलर इज रेडी टू सेल एंड दैट्स अ मार्केट. सो दैट्स अ ट्रेड. इट्स नॉट कि वी शुड कीप नहीं 10% प्रॉफिट. नो, इट्स नॉट लाइक. वायर both the parties are satisfied. That's the rule of business. The rule of business is that if buyer and seller both are satisfied, then we call it a trade. There is nothing called a malpractice if it's both are satisfied. Malpractice कब हो गए? जब seller कोई चीज देगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो obviously that's a malpractice. उसके लिए हमने एक यूनिट बिजनेस स्टडीज में पढ़ना है, दैट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर के हुकूक क्या है? वी आर ऑल्सो ए कंज्यूमर. इवन दो आई कैन बी अ मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और अ person from a business family, still I am a consumer. I have to buy n number of things. I might be selling one thing, but I have to buy a number of things. So consumer is the king of the market. ये कुछ टैग लाइन्स आप याद रखेंगे और लिख के रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है. सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोडक्शन में एक अहम चीज, एक फंक्शन में लिखूंगा आपके लिए. जब भी हमें कोई चीज बनाना हो तो वी कॉल इट ए क्यू और ए आउटपुट. इट कैन बी एनीथिंग. जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं वी कीप इट एन आउटपुट. हाँ, इसमें हमें इट्स फंक्शन ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और ए सर्विस, वी कॉल इट ए क्यू, इज फंक्शन ऑफ एल, उसके बाद स्मॉल एल, उसके बाद के, उसके बाद ई. याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन इन केस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. डिफाइन प्रोडक्शन. डिफाइन, वी कॉल इट अ प्रोडक्शन फंक्शन. चीज बनाने के लिए अगर आप कोई सा भी चीज बनाना, सिंपल, मतलब इफ यू मेक ए सिंपल व्हाट यू कॉल इट नीडल ऑल एंड यू हैव टू मेक एरोस्पेस मिसाइल, तो you need these four things. तो what's first? Q for output. आउटपुट जो भी आप चीज आपको बनाना है. L stands for land. लैंड एक चीज जहां पे कंफ्यूजन है. यूजुअली लैंड अगर आप किसी साइंस स्टूडेंट को होंगे, उसके लिए लैंड, या ज्योग्राफी स्टूडेंट को कहेंगे, ही विल से लैंड मीन्स जमीन, सॉइल या अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट. नो, हमारे लिए लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स. ये आपको डिस्टिंग्विश करेगा प्योर इकोनॉमिक स्टूडेंट, प्योर कॉमर्स स्टूडेंट, प्योर बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट देन a normal student who have just have done his commerce degree only for exam. वरना कितनी ज़रूरत है हमें हमारे यहाँ कश्मीर डिवीजन में फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट्स की. वी डोंट हैव गुड कॉमर्स ग्रेजुएट्स हियर. और इतना अच्छा स्कोप है हमारे सब्जेक्ट का. यू कैन गो फॉर, आप CA का चार्टर्ड अकाउंटेंट, company secretaryship, you can go for MBA at good reputed institute, you can go for other advanced diplomas in commerce, finance or trade or stocks or money markets. So it's, but condition is you have to study and study it well. So land means all natural resources. Land means all natural resources. It can be
water, it can be foresters, it can be anything which Almighty has given us, bestowed us. उसके बाद there's a labor. हाँ, एक और मिसकंसेप्शन ये भी है बच्चों में, तो लेबर हमारे लिए एक फिगर है who can be someone from the Bihar. No, that's wrong. Our Prime Minister is the labor. Narendra Modi ji is the labor in economics. Me as your teacher, I am a labor in production function. So labor mean simply human effort. जो भी आप human effort की बात करें, that's a labor. Labor, human effort. Even it can be a teacher, doctor, engineer. It can be any profession. It can be a businessman. He is a labor in a production function. He helps us for producing good or a service. उसके बाद we have a और labor में we have a different types of labor. Secular, unsecular, वो इंशाल्लाह कभी डिटेल में बात करेंगे. You might be knowing different types of labor are there. Secular, manual, huh? That's a good simple definition. And all are labor. Even though someone is a scientist, he is a labor in our production function. उसके बाद कैपिटल. कैपिटल को थोड़ा सा में, क्योंकि हमें जो आगे पढ़ना है फाइनेंस और कैपिटल के बारे में, कैपिटल को थोड़ा सा में डिटेल में डिस्कस करो. तो कैपिटल को यूजुअली हम कहते हैं मशीन स्टॉक, है ना. अभी तक हम कह रहे थे मशीन, लेकिन आज के बाद हम थोड़ा सा सोच समझ के कहेंगे नहीं, कैपिटल डज नॉट मीन ओनली मशीन स्टॉक. कैपिटल तीन तरह के होते हैं. वन इज द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल जो में अकाउंट्स वगैरह में हम इस पर कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल इज समहाउ सिमिलर टू द मशीन. हमने फैक्ट्री बनाई हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट में, दैट्स अ फिजिकल कैपिटल. हमने मशीनरी लाई, कोई मशीन स्टॉक लाया, दैट्स अ फिजिकल कैपिटल. मशीन फैक्ट्रीज, दैट इज अ फिजिकल कैपिटल, जिसको हम टेंजेबल, जिसको हम छू सकते हैं. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. लेबर और ह्यूमन कैपिटल में फर्क है. लेबर को काम दिया जाए तो वो करता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज समथिंग एड ऑन. लाइक ही हैज ह्यूमन कैपिटल मीन ही इज एजुकेटेड, ही इज स्किल्ड, he has a trainings with him, उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स है. लाइक he has MBBS degree, he has a BTech degree, he has a chartered accountant degree with him, he has a, like me, I have a PhD or I have a MBA degree with me. So that's a human capital. Scientists are human capital, economists are human capital. So and the third, जिसको कॉमर्स वाले जिससे डरते हैं, that's a financial capital, क्योंकि इससे थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल. जो कैपिटल्स ऑफ थ्री टाइप्स, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल डज नॉट मीन ओनली मनी, इट इंक्लूड्स स्टॉक्स, जो ना इवन most of the people invest in Kashmir, maybe we invest in stocks and different types of companies, and it's a good thing. We as a commerce student should know the market, how market will behave. The physical financial capital, stocks, equity, bonds, जिसको हम इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का उसमें पढ़ेंगे. So उसके बाद there's a one E. Can you guess what's this E? Yes, this E will be, hope you are putting down these notes, and E means entrepreneur. एंटरप्रीनियर. और इसी की ज़रूरत आज कश्मीर को है, पूरे इंडिया को है. वी नीड अ गुड एंटरप्रीनियर हु विल बी अ जॉब क्रिएटर्स, जिसको कहते हैं, न कि जॉब सीकर्स. जैसे हमारे ना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होके भी कोई कैसे बेरोजगार रह सकता है. वो इसलिए रह सकता है क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की होती, वरना a commerce student can be best entrepreneur. That's why in the beginning I told you that आप में से there might be a
Anil Ambani sting, those who are watching it. There might be someone Ratan Tata. So, entrepreneur, one who innovates the idea, who innovates the business. एंड इसमें मैं सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे सीबीएसई बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, आई गिव द एग्जांपल ऑफ आर.ओ. कैंट. देखो अपॉर्चुनिटी हाउ, और हर टाइम होती है. कभी कभी लगता है ना कि इट्स नॉट देयर, बट इट्स ऑलवेज देयर. ओनली थिंग इज कि यू डू लॉट ऑफ रिसर्च, यू स्टडी प्रोफेशनली थिंग्स. आर.ओ. कैंट, दिल्ली में सब पानी पीते थे, सबको पता था कि पानी गंदा है, बट इट्स द पर्सन ही thought that no, इस पानी को कैसे हम साफ करेंगे. Everyone knows that water is not safe to drink in Delhi, है ना. दिल्ली में पानी हो पीने के लायक नहीं, या मुंबई. लेकिन इस बंदे को आइडिया आया कि आई विल मेक समथिंग आर.ओ. जिससे पानी हम और हमारे घर में आर.ओ. लगा है. दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रीनियरशिप. और इवन जो हमारे ग्लास क्लिन है दुनिया में, मतलब दे हैव क्रिएटेड अ बिग नेम एंड फेम. तो दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रीनियरशिप और ही इज द पर्सन. अब ये जो सभी चीजें मिलते हैं तब जाके कोई चीज प्रोड्यूस होता है. जो प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, तो ही इज द प्रोडक्शन में ये चारों लोग हमें काम आते हैं, और चारों लोग के बगैर कोई चीज नहीं बनेगा. इफ यू हैव से सिंपल गिलास ऑफ वाटर, विदाउट these four things nothing can be made. So this was about the production. Now let's move back to our management. तो इसमें मैंने आपको एक अच्छा सा आइडिया दिया है कि आप किसी की पिक्चर जहन में लाओ. आप वॉल्ट डिज्नी की पिक्चर लाओ, ही वॉज अ गुड मैनेजर. आप हेनरी फोर्ड की पिक्चर जहन में लाओ. आप हुंडई के मालिक की पिक्चर जहन, या अली बाबा के जो ओनर हैं, को फाउंडर मायून, उसको जहन में लाओ. या हमारे यहाँ कश्मीर में है त्रम्बूज हैं, उन लोगों ने कुछ सिमट में अच्छा नाम किया है. सो या इंडिया में वी हैव अ डिफरेंट, मतलब रतन टाटा है, अनिल अंबानी है, बिरलास है. उनके नाम जहन में लाओ, उनकी क्वालिटीज देखो. एज अ मैनेजर उन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया. देयर इज अ गुड बुक्स रिटन ऑन दोज मैनेजरल प्रैक्टिसेस, मैनेजरल थ्योरी, जो आपको इंशाल्लाह आगे यूनिट में पढ़नी है. डिफरेंट मैनेजरल साइंटिफिक थ्योरीज. पहले क्या था, पहले मैनेजमेंट में हम क्या करते थे, मैंने जी अपने दादाजी सुना है, मैं अपने ये सुना है कि ये प्रॉब्लम आई थी तो ऐसा सोल्यूशन है. नहीं, आजकल वो चीज़ नहीं है. आजकल एवरीथिंग यू शुड हैव अ साइंटिफिक सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. जो भी आप प्रॉब्लम आपके पास आएगी एज अ मैनेजर, आपको उसका सोल्यूशन होना चाहिए. नाउ आई विल मेक ए वन डायग्राम जो आपका सिलेबस का एक 50% हिस्सा कवर करता है. उसी को हमने 4 यूनिट्स बोर्ड में बनाए हैं, 5 यूनिट्स. तो फर्स्ट दिस इज अबाउट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर. ये मैनेजर करता क्या है, एक मैनेजर जो इंडिविजुअल एक है, इसकी फंक्शंस क्या है. व्हाट आर द, जो बिजनेस, मैंने कहा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बिजनेस कहते हैं. बिजनेस इज ऑल अबाउट 2 थिंग्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और जो मैनेजर एज अ मैनेजर के फंक्शंस क्या है, तो पहली फंक्शन जो उसको है दैट्स कॉल्ड प्लानिंग. अब हर एक चीज को हमें प्रोफेशनली करना है, प्लानिंग. उसके बाद वी हैव टू ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद वी हैव टू स्टाफिंग. और ये हम सब करते आए हैं, अब थोड़ा सा हमें प्रोफेशनली इसको करना है. बाकी वी आर डूइंग दिस. आवर मदर्स आर बेस्ट मैनेजर्स, स्पेशली इन कश्मीर. हमारे जिस दौर से गुजर रहे हैं, वी आर द बेस्ट मैनेजर्स, बेस्ट स्टाफिंग. उसके बाद डायरेक्टिंग. उसके बाद एक और चीज़ है, उसको कॉल कंट्रोलिंग. एंड सिर्फ
मैं जहाँ पे काम करता हूँ मुझे एक चीज़ का वहाँ जिम्मेदारी है, दैट इज़ यहाँ कंट्रोलिंग की जगह मैं लिखूँगा लीडरशिप, क्योंकि मैं लीडरशिप एकेडमी का हेड हूँ, तो इट इज़ लीडिंग। नो डाउट बुक्स पे ये लिखा होगा, लेकिन आजकल कंट्रोलिंग का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज कंट्रोलिंग जो थ्योरीज है वो फेल हो गई थ्रू आउट वर्ल्ड। आजकल कहते हैं लीडिंग शुड बी द बेटर वर्ड इन केस ऑफ कंट्रोलिंग। यू कांट कंट्रोल ह्यूमंस, स्पेशली एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करता है, लेकिन इट्स नॉट सस्टेनेबल। दैट्स वाई मैं यहाँ कंट्रोलिंग के बजाय लीडिंग लिखूंगा। अगर आप एग्जाम में यू राइट कंट्रोलिंग, लेकिन ये लिखो आप लीडिंग भी साथ, ताकि वो भी इम्प्रेस हो जाए कि नहीं इसने एक अच्छी चीज़ कही है, क्योंकि कंट्रोलिंग पार्ट आजकल इट्स अ काइंड ऑफ अ फेलियर। तो नाउ इस चीज़ को हम थोड़ा सा अब इन कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो इसको आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में इंशाल्लाह डिटेल्ड हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्लानिंग फेज। तो इट्स अ प्योरली व्हाट वी कॉल इट, दिस द ब्रेन, क्योंकि हर एक काम जो दुनिया में होता है ना, ये दो बार होता है। पहले इंसान के जहन में होता है, उसके बाद हम इसको करते हैं। पहले सपोज आई वांट टू टेक अ वाटर, पहले मैं सोचता हूँ आई विल टेक अ वाटर, तब मैं करता हूँ। तो हर काम दो बार होता है। तो पहले जो दिमाग में काम होता है उसको हम कहते हैं प्लानिंग, वी कॉल इट ए प्लानिंग। तो इसमें हम करते क्या है, तो जो हमें पूरा एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4 कि प्लानिंग क्या है। लेकिन एक चीज़ आप याद रख लीजिए, अगर हमारे यहाँ प्लान अच्छा है तो इस सारा जो साइकिल आप देख रहे हैं ये अच्छा होगा। आप देखिए, यू एज अ स्टूडेंट, आपको मैं एक असाइनमेंट रखूँगा, आप इसको इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच। किसी भी काम करने का एक साइंटिफिक अप्रोच है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या डिस्ट्रीब्यूशन करो। एज अ बिजनेस मैनेजर इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर। नाउ एज अ स्टूडेंट आपको मुझे एक स्कूल पिकनिक, एक असाइनमेंट आपको रखूंगा, यू हैव टू अरेंज अ स्कूल पिकनिक। हमें स्कूल पिकनिक जाना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स आपको करना है, ठीक है। वी हैव टू गो टू पिकनिक एंड यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स एज पर दिस साइंटिफिक फॉर्मेट। दिस आर द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजर क्या करता है, ही फर्स्ट प्लान्स। तो यू आर अ मैनेजर, आपको स्कूल पिकनिक करना है, तो पहले आप क्या करोगे, जिसको हम कहते हैं मीटिंग करेंगे। मीटिंग में हम कहते हैं प्लान, हम कहते हैं जी वी फिक्स प्लेसेस, हम कहाँ जाना है, प्लेस, वी फिक्स डेट, वी फिक्स नंबर, कितने लोगों को जाना है, वी फिक्स लाइक किस बस वाले को बोलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिकनिक। हमने प्लेस डिस्कस किया, वी डिस्कस अबाउट कब जाना है, कितने लोगों को जाना है, किस बस में जाना है, और अदर लॉजिस्टिक्स। दैट्स अ प्लानिंग पार्ट। अभी हम नहीं गए, मैंने कहा ना हर काम दो बार होता है। पहले हमारे ब्रेन में होता है, जिसको हम प्लानिंग फेज कहते हैं। उसके बाद जब आपने सारा चीज प्लान किया, या आप घर में लिखना, एक शीट लेना, यू टेक दिस काइंड ऑफ अ प्लेन शीट, यू प्लान ए स्कूल पिकनिक, बट यू डू इट साइंटिफिकली। आप देखो कि अगर आप साइंटिफिकली कोई काम करेंगे, इट विल बी ऑलवेज इट्स आउटकम विल बी द बेस्ट, रादर दैन जो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। दैट्स नॉट अ गुड वे, इट्स अ वे टू डू इट। वी कॉन्ट बी इफ वी डू बिजनेस लाइक दिस एज पर दिस साइंटिफिक थ्योरी, वी वोंट बी अ फेलियर इन द बिजनेस, नॉट एट ऑल। बट व्हाट वी डू सिंपली हिट एंड ट्रायल। अगर जी क्लिक हो गया हम बिजनेस कर, नहीं क्लिक हो गया बंद करेंगे। नो, एज अ बिजनेस मैन, एज अ बिजनेस मैनेजर, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। फर्स्ट यू हैव टू प्लान। तो जब आप प्लानिंग फेज के बाद जाएंगे, जो हमारा यूनिट 4 है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद वी हैव ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। तो व्हाट वी डू इन ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग, वी मेक some arrangement, organizing, हम अरेंजमेंट करते हैं, we do arrangement of different things।
we do arrangement. किस in terms of both functional arrangement as well as a divisional arrangement. Organize, हम अलग अलग करते हैं चीज़ों को, means there might be a number of things, हम we organize that, we classify that, अलग अलग हम करते हैं. We classify the work, कौन सा किस बंदे को कौन से काम को हम अलग अलग हम ऑर्गेनाइज कौन सा काम करेगा. उसके बाद वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट्स कॉल्ड स्टाफिंग, जो हमारा, और इसमें आजकल सबसे अहम रोल है जो ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में जो हमें पढ़ना भी है इसमें, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइज मीन्स एज अ स्कूल प्रिंसिपल मैंने आपको कहा स्कूल पिकनिक अरेंज करो, दैट्स पार्ट ऑफ ए डिसेंट्रलाइजेशन. जो आजकल बिजनेस में मंत्रा है, जो बिजनेस मंत्राज हैं, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन, गिव फ्रीडम टू द ह्यूमन. मैंने इसलिए कहा ना, जो अर्लियर मैनेजमेंट थ्योरी उसमें कंट्रोलिंग लिखा है, लेकिन मैंने क्या लिखा, लीडिंग, क्योंकि आजकल यू कांट कंट्रोल ह्यूमंस. इट्स नॉट द इट्स इन 21st सेंचुरी वी कांट कंट्रोल ह्यूमंस, खासकर ब्रेन को वी कांट कंट्रोल इट. तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिसेंट्रल. उसके बाद वी हैव अ स्टाफिंग. तो इसमें सबसे अहम चीज जो हमें डिस्कस करनी है, जो बाद में आप दैट्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग. किस बंदे को कौन सा काम रखना है, ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग, किस बंदे को कौन सा काम रखना है. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है एज अ मैनेजर, कहते हैं ना, ही इज HR मैनेजर. आपने सुना होगा, मुझे इंट्रो था या आपके भाई को कोई इंट्रो होगा, HR मैनेजर है ना, वो HR मैनेजर. तो ही व्हाट ही डूज, ही रिक्रूट्स. जैसे गवर्नमेंट यहाँ है, SSRB है, PSC है, वो रिक्रूट करते हैं. दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस स्टाफिंग. गवर्नमेंट का में जो स्टाफिंग कौन करता है, SSRB, PSC, दे आर डूइंग, दे आर रिक्रूटिंग. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिक्रूटमेंट के बाद दे गिव ट्रेनिंग. केस ऑफिसरों को ट्रेनिंग देते हैं मिम्पा में, या हम अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स या प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देते हैं, DDOs को ट्रेनिंग देते हैं. तो दैट्स बेसिकली स्टाफिंग, पार्ट ऑफ स्टाफिंग. और आजकल अहम चीज है, एक टर्म आपने देखी होगी, दैट्स कॉल्ड R&D. आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी का हिस्सा आता है, स्टाफिंग का, जिसको इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे. लेकिन फ्रेमवर्क यही है, आपको स्कूल पिकनिक अरेंज करना है, अपनी कॉपी पे लिखा. अब उसके बाद किस बंदे को कौन सा काम आपने रखना है, आपने क्लासिफाई काम किया, मतलब खाने का अरेंजमेंट है वो अलग से किया आपने. लेकिन अब फिर उसके बाद यू आर फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, क्योंकि यू आर अ मैनेजर, यू आर हेडिंग ए यूनिट. एक ऑर्गेनाइजेशन किससे ग्रो होती है, अच्छे मैनेजर से. जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे मैनेजर होंगे, जैसे एक ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस प्रिंसिपल इज अ मैनेजर, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है ही इज अ मैनेजर, ही मैनेजेस डिफरेंट थिंग्स. उसके बाद डायरेक्टिंग. अब उसके बाद एज अ हेड यू आर इनोवेटिव, आपको उनसे ज्यादा नॉलेज होती है, यू आर इनोवेटिव, यू आर अ रिस्क लवर, यू डू सम सुपरविजन, क्योंकि यू आर अ हेड एज अ मैनेजर. अगर आप इस स्कूल पिकनिक, यू नो एवरी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ थिंग्स, यू आर सुपरवाइजर, यू आर अ मोटिवेटर. अगर आपके एम्प्लॉयज कभी कभी थोड़ा सा डीले पड़ जाते हैं तो आप उनको मोटिवेट करते हो, यू गिव देम सम मोटिवेशनल स्पीच एंड दे गेट एनर्जाइज्ड. मोटिवेट, जैसे आप स्टूडेंट्स कभी कम पर तो टीचर कुछ एनर्जाइजर देता है और दे गेट एक्टिवेटेड, मोटिवेटेड. लाइक मैंने आपसे कहा कि आप अच्छे मैनेजर बनेंगे फ्यूचर में, तो लेकिन आपको जो ये चीज़, दैट्स अ मोटिवेशन. आई एम मोटिवेटिंग यू टू रीड गुड मैनेजरल थ्योरीज, गुड मैनेजरल अंडरस्टैंड मैनेजमेंट फंक्शंस. उसके बाद सबसे अहम चीज़ है, एक मैनेजर एक कम्युनिकेटर होता है, इज अ कम्युनिकेटर और मीडिएटर. क्योंकि टॉप लीडरशिप जो कंपनी का मालिक होता है और जो एम्प्लॉय होता है, या जो एक कंपनी का जो व्हाट वी कॉल इट, जो गेट कीपर होता है, मीन्स ना जिसकी सैलरी के हिसाब से कम, उसके और उसके दरमियान यू आर द कम्युनिकेटर. इस एम्प्लॉय का जो मुझे गेट पे
24 घंटे होता है उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको आपको समझना है. यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू respond to that, both formal and informal. It's not only you have to understand their gestures. आपको लग रहा है कि आपका एम्प्लॉय कुछ मांग रहा है, even though he won't be able to say you because of job का है, लेकिन you should be able to understand. उसके बाद है कंट्रोलिंग, जिसके साथ मतलब आई एम नॉट सो हैप्पी विद द वर्ड कंट्रोलिंग, आई एम हैप्पी विद द वर्ड लीडिंग, बिकॉज कंट्रोलिंग आजकल ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, आजकल लीडिंग वर्ड यूज करते हैं. तो लीडिंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस. देखो मैंने आपसे कहा जब आप एक अच्छे मैनेजर को जहन में रखेंगे, किसी कंपनी का एक मैनेजर को जहन में रखेंगे, आपको ये सारी चीजें उसमें यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स इन हिम, क्योंकि इज अ लाइव मैनेजमेंट बुक इन फ्रंट ऑफ यू. देयर आर hundreds and thousands of managers who have saved companies all over the world. कोई कंपनी जीरो पर आ रही थी, एक अच्छा मैनेजर आ गया, उसने उसको अप लिया. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुड मैनेजरल प्रैक्टिसेस, गुड मैनेजरल थ्योरीज, गुड मैनेजरल क्वालिटीज. और उसके साथ साथ एक बड़ी कंपनी चलाने के लिए, जैसे मैंने टाटाज की एग्जांपल दी है, टाटा की जो कंपनी जो आपकी बुक में केस स्टडी भी है, टाटा, ये आजकल इट्स नॉट ओनली टाटा स्टील, इट्स टाटा कंसल्टेंसी आल्सो, TCS कंसल्टेंसी. These are more than 25 firms within the Tata Limited. So they have a good managers. और उन मैनेजर को एक लीड करता है, दैट्स अ रतन टाटा, और उनका जो CEO है तो ही हैज अ लीडिंग कैपेसिटी, दैट्स अ ही मेक इन्फ्लुएंस. तो अब लीडिंग पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. इन्फ्लुएंस क्या होता है? आप किसी को देख के खुद उसकी चीजें अडॉप्ट करते हो. आई टोल्ड यू मनी अ टाइम, जब आप एक मैनेजर को सामने रखोगे आप उसमें ये सारी चीजें पाओगे. अब हमने यहां नाम दिया कि ही प्लान्स वेल, ही ऑर्गेनाइजेस वेल, ही स्टाफ गिव्स rules, recruitment rules, he develops training modules, he gives a good research and development opportunity to all the employees, and he directs not only forcefully but he innovates. अगर किसी को एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, he has a solution with him, an innovative solution. He supervises, he motivates, he communicates, and most important thing, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए you should have a good, not a controlling officer but a good leader. Good leader में it's all about influence, it's all about leadership in action. वो खुद करता है leadership in action, leadership in action. वो खुद, he leads from the front, that's a leadership. He transforms. एक ऑर्गेनाइजेशन जो जीरो पे है उसको ट्रांसफॉर्म करता है और विथ 100% प्रॉफिट्स मोर देन दैट अचीव करते हैं. दैट्स अ लीडरशिप क्वालिटी. सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस विद इन द व्हाट वी कॉल इट योर सिलेबस पार्ट 1. एंड नाउ रिगार्डिंग द पार्ट 2. Part 2 we will discuss later, but इस part 1 में I will give one important thumb rule. I hope कि you have understood the management part and basic functions. जो इस सर्कल, इस डायग्राम को आप बनाएंगे, सिर्फ कंट्रोलिंग के साथ साथ लीडिंग भी लिखेंगे. Now moving ahead, this is the I can say 50% of your syllabus. लेकिन आप थोड़ा इसको अलग अलग करके थोड़ा डिटेल्ड में इसको हमें पढ़ना है. और मेरा जो असाइनमेंट मैंने आपसे रखा कि आप एक स्कूल पिकनिक को अरेंज करो, उसमें जो जितने भी स्टेप्स आपको ज़रूरत है वो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये अनदर टॉपिक है. कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अच्छा मैनेजर होता है, ऑलवेज कीप्स गोल ओरिएंटेड. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, इज अ गोल ओरिएंटेड. हर एक चीज का एक मकसद होता है.
आपको बिजनेस बनाना है रतन टाटा जैसा, यू हैव अ गोल इन माइंड, गोल ओरिएंटेड, यू शुड ऑलवेज हैव अ फोकस ऑन यूर, नो डाउट इट्स अ प्रोसेस, गोल एक प्रोसेस है। आपके पास 100 रुपया आता है, यू ऑलवेज थिंक नाउ आई शुड गेट द 200, नाउ आई शुड गेट द 2000, आई शुड गेट द मोर ऑन दैट, सो इट इज गोल ओरिएंटेड। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैनेजमेंट का है वो है, इट हैज टू बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। एंड नाउअडेज वी टॉक अबाउट इट शुड हैव अ विजन, जैसे ना लीडर का होता है एक विजन कि मुझे एक मुल्क को कहाँ पहुंचाना है, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पहुंचाना है। एक घर में जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है उसका एक विजन होता है कि मैं इस साल मुझे कितनी तरक्की करनी है। दूसरा है मैनेजमेंट जो इट्स ऑलवेज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल कहाँ कहाँ पे, एट वर्क, एट ह्यूमन। उसके बाद वी हैव अ ऑपरेशंस, जो हमारे एमबीए में बाकी पेपर्स अलग अलग एक होता है, लेकिन आपको सिंपल एक इंट्रोडक्शन है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल मीन्स यू हैव अ मैनेजमेंट एट वर्क, हाउ यू मैनेज वर्क, है ना। और इसका एक थंब रूल है, ये याद रख लीजिए आप वंस फॉर ऑल। ये मैनेजमेंट मीन्स आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, उसमें रूल ये है कि एफिशिएंटली, एक टर्म है एफिशिएंटली जो आप काफ़ी एफिशिएंटली, एफिशिएंट, इफेक्टिवली, ये टर्म हम मैनेजमेंट में एक रूल है। एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट मीन कि आप चीज़ तैयार करो एट ए मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे पे आपको मिनिमम कॉस्ट, दैट्स एफिशिएंट, दैट्स अ डेफिनेशन। और टेक्निकली आप कॉस्ट में इज बेसिकली एन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा टेक्निकलिटीज, इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो एवरेज कॉस्ट जहाँ पे कम है उसको एफिशिएंसी कहते हैं, उसको ऑप्टिमम कहते हैं। तो मैनेजमेंट में चाहे वर्क हो, ह्यूमन हो, ऑपरेशन हो, इट हैज़ टू बी एट द मिनिमम कॉस्ट। मैनेजर वो होता है जो कम कीमत पे एक अच्छा आउटपुट तैयार करे, जो आउटपुट के मैंने रूल्स आपको बताए। उसके बाद है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस तो है, बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ, इंसान यहाँ थकना नहीं चाहिए। जनरल मोटर्स कब स्टार्ट हुआ, वाल्ट डिज्नी कब स्टार्ट हुआ, या वैरन बफेट, या इवन एचपी जो दो फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स, पाकार्ड एंड हैविट, विलियम हैविट, एचपी जो है ना आज लैपटॉप्स हम देखते हैं, दे वर बेसिकली फ्रेंड्स। तो उन लोगों ने, दे आर कंटिन्यूसली, इट्स अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ये एक दिन में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद हमेशा याद रख लीजिए, ये हमेशा एक ग्रुप वर्क होता है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में एक नहीं होता, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बताई हैरी पार्कर फॉलेट की, उसने कहा कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, तो इट्स अगेन ए ग्रुप एक्टिविटी। अब एक मैनेजर उनका हेड होता है, बट इट्स ऑलवेज ए ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद वी हैव अ, इट इज समथिंग नॉट विच यू कैन टच, इट्स अ इंटेंजिबल। फिफ्थ, इंटेंजिबल, ये इसमें थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल थिंग जिसको आप नहीं, लेकिन आप फर्क दिख सकते हो। एक अच्छे स्कूल में आपने देखा होगा, अगर आपके टेन्योर में आपका हेडमास्टर, आपका प्रिंसिपल पहले एक था, अब दूसरा है, लेकिन आपने, इंसान तो एक ही है, लेकिन आपने देखा कि एक जो पहला हेडमास्टर था या जो वो, और दूसरे हेडमास्टर या प्रिंसिपल में काफ़ी फ़र्क है। दे आर बोथ हैविंग सेम एलिजिबिलिटी। फिर आप कहते हैं ये मैनेजमेंट टफ, इसकी मैनेजमेंट टफ है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, ये स्कूल को अच्छा चलाता है, ये स्कूल टीचर्स को अकाउंटेबल बनाता है। तो असल में आप उसको देख नहीं सकते, इट्स नॉट समथिंग यू कैन सी, इट्स इंटेंजिबल विच यू कैन नॉट टच, बट यू कैन फील द डिफरेंस, you can feel the difference, and that's true। और फर्क पड़ता है, एक अच्छे हुक्मरान का असर पड़ता है,
Even in countries, it has been written, it is documented in the books, कि if we have a good leader, always there can be a good things around in the country. So that's why it's intangible thing. So this was the characteristics. It's a goal-oriented process. It's always you have to fix some goal, you have to reach somewhere. And these goals, ये जो ख्वाब है ना, it has to be something big in nature, हाँ. वरना अनिल अंबानी को जरूरत नहीं है मतलब पैसे कमाने की. He has earned a good money, but he again works more than we people. It has to be goal. And second, it's a multi-dimensional nature. Management की 3 layers हैं, at work, at human and at operational level. तो तीनों जो इट्स अ मल्टी, एक ही जगह मैनेजमेंट काम नहीं करता. यू हैव अ, जैसे आपने देखा ह्यूमन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, और मैनेजर ऑपरेशंस, मैनेजर वर्क्स, मैनेजर फाइनेंस, एंड इट्स अगेन अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन एक चीज है, दे शेयर थिंग्स. लाइक आई हैव वन बुक ऑफ स्टीव जॉब्स, उसमें दे शेयर देयर प्रैक्टिसेस कि हम कैसे इतने बड़े अच्छे मैनेजर बने, हमने कैसे इतनी बड़ी जो एप्पल कंपनी मैंने कैसे चलाई, हाउ मैंने कौन से मैनेजरल थ्योरीज, मैनेजरल प्रैक्टिसेस मैंने अडॉप्ट किए. उसके बाद इट हैज़ टू बी अ ग्रुप एक्टिविटी, because we have to come together and find a solution to the problem. We have to come together to make an efficient organization. We have to come together to make a efficient innovation. We have to come together, or then we said group work is the dream work. There's a one quote कि group work is a dream work. क्योंकि एक इंसान अकेले कितना कर सकता है, इज अ ड्रीम वर्क. जो ख्वाब है ना वो ग्रुप से ही पूरा होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान से नहीं बनती, इट्स अ सेट ऑफ पीपल एंड इट्स ऑलवेज अ इंटेंजिबल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस. we will discuss the importance of the this was the characteristics. Importance almost obviously इतना सुनने के बाद आप तो माशाल्लाह you will be able to understand कि इसकी importance कितनी होगी. Hope you can do it yourself, but थोड़ा सा मैं भी ऐड करूँ इसमें. Obviously it's very important. Some you might have seen some doctors doing some management degrees. Even some people from background like engineering background do some management degrees. So importance के साथ then I will conclude my lecture. So once the इस management की importance क्या है, characters के साथ साथ I will discuss the importance. तो importance में सबसे अहम चीज़ है कि जो हमारी organization के goals हैं, group goals, तो management से we can achieve group goals. एक है ना, एक इंसान का goal can achieve group goals, जो सारे ऑर्गेनाइज ग्रुप गोल्स. शेयर्ड एम्स, जो हमारे शेयर्ड एम्स है, जो सबके शेयर्ड एम्स, सबके मकसद एक साथ हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं. सेकंड, मैनेजमेंट से इट ऑलवेज इंक्रीजेस एफिशिएंसी. या ट्रू. मैंने कहा ना, एक स्कूल में एक हेडमास्टर है और दूसरे स्कूल में एक अच्छा मैनेजर है, अच्छा हेडमास्टर है, ऑब्वियसली इंक्रीजेस एफिशिएंसी. वो पहले ही दिन ही पता चलता है इज अ गुड एफिशिएंट टीचर और एफिशिएंट मैनेजर. इट इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स लो कॉस्ट पे तैयार करता है चीज़ें, वो प्रैक्टिस करता है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ही अडॉप्ट्स. उसके बाद एक मैनेजमेंट से एक अच्छी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है. जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक मीन लाइक टाटा ऑर्गेनाइजेशंस. कहाँ टाटा साल्ट है ना, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टाटा साल्ट से, जो ना बचपन में आज भी टाटा साल्ट, और आज कल देखिए टाटा TCS. इंजीनियरिंग स्टूडेंट तमन्ना करते कि हमें TCS में जॉब मिले, या हमारे कॉमर्स स्टूडेंट कहते कि हमें TCS में जॉब मिले. सो उसके बाद एक तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ग्रुप गोल्स के साथ साथ इंडिविजुअल गोल्स. अगर आपने अच्छी एक इंडिविजुअल गोल्स भी,
and these are the things. So now I suggest you one important book. अगर आप एक अच्छा इफेक्टिव मैनेजर बनना चाहते हैं तो स्टीफन कोवी को आप पढ़ेंगे. स्टीफन और कोवी. मुझे पता है इसमें बहुत सारे गर्ल जो दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग. स्टीफन और कोवी की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मैनेजर की जो 7 क्वालिटीज है वो बयान की है. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिन्होंने दुनिया में छाप छोड़ी है. हाईली इफेक्टिव पीपल, उसको इंशाल्लाह मैं आगे की थ्योरीज में डिस्कस करूंगा. इफेक्टिव पीपल, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे और यू कैन डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम www.freeofcost.book-ok.xyz, or you can send me a message on 9596 100 306. I will send this book because I want these books that all should read it. It's a very effective book. Thank you very much for this lesson, and hope we will meet soon with new topic on managerial skills. Thank you very much.